Welcome back. Firstly, wishing you all a happy and prosperous new year. Yes, it is little delayed, but the thing is, like, this is the first webinar of Rajlakshmi Solutions in this new year. So, wishing you all success in this new year, and let's all take the positivities of 2021 to 2022 and make everything a grand success and the great success. So, stepping into today's webinar and Raj Lakshmi Solutions Private Limited, basically, we are what we are and what are the services we provide. That really matters. So, as usual, let me get into the introduction. Raj Lakshmi Solutions Private Limited deals with multiple services as well as softwares like Tally Prime, an accounting software, Bitrix CRM, a customer relationship management software, and part of Skill India, a government project which is concerned and related to the employment and the education of students. And we are part of Tally on Cloud, which is one of the most important and very essential for every professional and the organization as of now, as it deals with like work from home scenario, sit anywhere and everywhere and successfully run your business without any kind of hassles. And we are part of SAP Business One, again, a special solution to all the success for an organization, which deals with multiple sectors like accounting, like organizational management, project management, and along with that, system management and multiple activities, etc. Well, this is all about the introduction specifically to talk about the softwares and what we do in the organization. Let's see with these softwares what we do. That is all about. We are part of sales, we are part of marketing, we are part of like customization. Basically, we customize the product as per your requirement and your working style and structure. Well, let's see what are the different services. So, services, to talk about services, we completely provide the services to just comfort you by always by 360-degree angle. And the next thing I can say, like, we are part of HR services, that is human resource management, which is like backbone for any organization. Basically, the management of like resources, talent acquisition, training and development, or in related to employee engagement, or at the same time managing the rewards and recognition, like arranging the events, for example, like R&R activities, annual day functions, or any kind of product launch events, etc. And we are part of digital marketing services, wherein we deal with multiple digital transformation platform. As if now, like showing the market that we are actively working really matters. So digital marketing is one of the prime hottest area wherein we can show the market that we are actively working with the right productivity without any kind of hassle to just grab the attentions. So basically, we are part of digital marketing. Basically, what we do is here we transform your accounts, or we create your accounts digitally, and we present to the market that you are actively working onto certain products, certain softwares, or it might be services, etc. And along with that, it really matters that when we present, it is very essential. We should promote our organization in a right way. So digital marketing platform helps us to present as well as promote our organization and attract the people and show them that we are actively working with the right resource, with the right strength. Yes. This is all about Raj Lakshmi Solutions Private Limited. There are multiple things here for the complete business solution 360-degree angle, I can say. And moving ahead, let me not take much time of yours. Moving ahead for today's topic. Today's topic is all about multi-state GST with Tally Prime. One of the hottest and prime topic, I can say this was the highest demanded topic of December and January. So this week we have taken this particular webinar topic. So basically, going on to the like instructions of webinar, the first and the most important thing is this webinar is getting recorded, and this webinar will be shortly uploaded into YouTube channel. So request you to please go and watch into our YouTube channel and do subscribe our YouTube channel to get all the details about Raj Lakshmi Solutions Private Limited and the webinar details and the offer details, etc.
So along with this, I must say we are active in all the social media platform. Do follow us, do connect us to know multiple offers as well as the multiple comfortabilities what Rajalakshmi Solutions provide to the SMEs, to the medium as well as to the large organizations. So I think I'm here good to go now towards the webinar topic. So yes, it's completely over to Mr. Sahil and Miss Anna. So first, let us introduce them. Let's see they are here or no. So hi, Mr. Sahil, are you here? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good Yes, afternoon. Sahil. Thank you so much for joining and welcome to the webinar. Thank you, ma'am. And moving ahead to Miss Annam. So Miss Annam, are you here? Yes, ma'am. Hi, Miss Annam. Welcome to the webinar. Yes. So now let's move on to the resource person, that is the additional ovary cap speaker, Mr. Bhagwati. So Mr. Bhagwati, are you here? Yeah, good evening, everyone. Yeah, I'm available. Yes, thank you for joining and thank you for your space, Mr. Bhagwati. So all set, I guess. This is our team, and the team is completely ready for the webinar. So now it's over to you, Mr. Sahil and Ms. Anam, for today's webinar. And wishing you all the best. Do the right presentation and let the customer get the right productivity out of this presentation. So thank you from my end, and it's over to you, Mr. Sahil and Ms. Anam. Thank you, Deepa ma'am. I request Mr. Ramvilas sir to present the slide. Hello all, very good afternoon to one and all present here. Myself, Miss Anam Sheikh, representing on behalf of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. So moving towards our most interesting topic, that is multi-state GST in Tally Prime. Basically, multi-state GST module is developed to maintain data and simplify the overall process of different companies. So we'll move to the next slide. Now let's move to the introduction part of multi-state GST in Tally Prime. Tally Prime simplifies the process of handling the account of all the branches of the company across multiple state under the company. Tally Prime में आप एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल स्टेट के ब्रांचेस एंड डिफरेंट अकाउंट्स के प्रोसेस बहुत ही इजीली एंड सिंपलर वे में मैनेज कर सकते हैं. मल्टी स्टेट जीएसटी इन टैली प्राइम मॉड्यूल helps to maintain sale, purchase, credit note and debit note in single company. Multi-state GST module के थ्रू आप sale, purchase, credit note and debit note single company में ही maintain कर सकते हैं. Now we'll move to the next slide. Now here we'll see some interesting features of multi-state GST with Tally Prime. The first is maintains data of multiple branches within a single organization. Multi-state GST module के थ्रू आप single organization के multiple branches Tally Prime में maintain कर सकते हैं. Moving to the next slide, next point. Reduces issues that occur during GSTR returns. मल्टी-स्टेट जीएसटी मॉड्यूल जीएसटीआर रिटर्न्स में एरर रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउ यूजर टू गेट GSTR1, GSTR2, GSTR3B reports of different branches at a single place. Multi-state GST module helps to the user file GSTR1, GSTR2 and GSTR3B of different branches, and also you can get it at a single place only. The third point is assist in understanding the performance of different branches. Multi-state GST module in Tally Prime आपको different branches के performance and activities assist and maintain करने में help करता है. So now we'll move to the next slide.
Multi-state GST module helps to maintain the accounts of all the branches of a company located in different states more effectively and accurately. As I said before, multi-state GST module के थ्रू आप different स्टेट के कंपनी के ब्रांचेस अकाउंट्स टैली प्राइम में बहुत इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली कर सकते हैं. So overall, this was all about the theoretical part of multi-state GST module with Tally Prime. So now it's time for the live demonstration. So I request Mr. Sahil sir to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you, Anam. Hello, everyone. Good evening. Welcome to the Rajlakshmi World. I am Sahil here. बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टी जीएसटी विद टैली प्राइम. हम डेमो देखने से पहले ये देख लेते हैं कि हम मल्टी जीएसटी का यूज क्यों करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हमें मल्टी जीएसटी हमें टैली में यूज करना है. बेसिकली जो टैली का डिफॉल्ट फीचर है वो क्या है कि आप एक जीएसटीएन एक ही स्टेट के लिए आप एक कंपनी जब क्रिएट करते हो तो उसमें सिंगल स्टेट के लिए सिंगल जीएसटीएन आप यूज कर सकते हो. बट अभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका कि एक ही स्टेट में बिजनेस जो है, जो कंपनी है, एक मेन ब्रांच है जो सिंगल स्टेट में रजिस्टर्ड है जैसे महाराष्ट्र, बट उसकी ब्रांचेस बहुत है जैसे दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा. तो होता क्या है कि उनको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि टैली ने वो फीचर दिया ही नहीं है कि टैली के उसको फीचर में जाके हम यूज कर सकें कि हम मल्टीपल अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर ऐड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम जीएसटी R1, R2, 3B रिटर्न भर सकें या उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर रिपोर्ट देख सकें. तो इस जो प्रॉब्लम आती थी, जो हमें जिनकी ब्रांच ज्यादा होती थी जिस कंपनी के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम मल्टी जीएसटी जो है वो हमने कस्टमाइज किया है. वो हम देखेंगे कि कैसे हम एक ही सिंगल कंपनी जो है उसमें ब्रांचेस जितनी हमारी 3 या 4 उनका जीएसटी नंबर कैसे यूज करेंगे और जीएसटी के अकॉर्डिंग कैसे हमारी एंट्री होगी. कि लाइक अगर एक डेटर्स है जिसका जो जीएसटी नंबर जो उसका जीएसटी यहाँ रजिस्टर्ड है वो दिल्ली से रजिस्टर्ड है और जो हमारी मेन ब्रांच है वो हमारी ब्रांच है मुंबई, हम मुंबई से भी उस डीलर को सेल करते हैं और अपनी दिल्ली ब्रांच से भी करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू जो टैली का रूल है, अकॉर्डिंग टू जो जीएसटी का रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली, हमारी कंपनी तो महाराष्ट्र की, अगर हम महाराष्ट्र से दिल्ली बिलिंग करेंगे तो आईजीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए. और जो हमारी दूसरी ब्रांच है वो अगर दिल्ली की, अगर हम दिल्ली से दिल्ली में बिलिंग कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमारा जीएसटी R1 भी रेडी होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जीएसटी R2 भी, 3B प्रॉपर हमें दिखना चाहिए स्टेट वाइज कि अगर हमारा एक ही वेंडर है वो हमारा डिफरेंट स्टेट से अगर हम उसको बिलिंग कर रहे हैं तो उसका कैसे जीएसटी रिटर्न तैयार हो रहा है, क्या उसमें इशू आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अभी देखेंगे टैली में कि कैसे क्या चीजें हमें मेंटेन करनी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है जिससे कि हमारी रिपोर्ट प्रॉपर आए यूज मल्टी जीएसटी का यूज करके. तो हम आते हैं टैली में. टैली में ये जो मैंने कंपनी, एक डेमो कंपनी क्रिएट कर रखी है. डेमो कंपनी में अभी जो मेरा बेस जीएसटीएन है, जो बेस मेरी कंपनी है वो है मुंबई की. वो चेक कर लेते हैं हम. सबसे पहले महाराष्ट्र की रजिस्टर कंपनी है और हमारा जो जीएसटी नंबर है वो भी महाराष्ट्र का है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. बेस कंपनी जो हमारी है वो महाराष्ट्र की रजिस्टर्ड है, बट एक्चुअली है क्या, इसकी 2 ब्रांचें अलग है, कर्नाटका, उड़ीसा. तो हम प्रॉब्लम क्या थी कि हमें उसके लिए अलग अलग बनाना पड़ता था कंपनी. अभी हमें मल्टी जीएसटी यूज करके हम एक ही कंपनी में देखेंगे कि कैसे उनको यूज करेंगे. अब हमें क्या है कि जितनी भी हमारे ब्रांचेस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वाउचर टाइप अलग अलग क्रिएट करने हैं. वाउचर टाइप से पहले सबसे पहला मेन है कि हमें जो ब्रांच है उनका जीएसटी नंबर कहाँ पे एंटर करेंगे जिससे कि उनके अकॉर्डिंग हमारा सेल्स में जीएसटी कैलकुलेट करे और उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट तैयार हो. हमने देख लिया कि जो हमारी बेस कंपनी महाराष्ट्र की है. अब टैली मल्टी जीएसटी का हम जब यूज करते हैं तो हमें एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है, वो है जीएसटी टैक्स यूनिट. जीएसटी टैक्स यूनिट में अगर आपको नया कंपनी आप क्रिएट किया, अगर आपने नई ब्रांच ओपन हुई है तो आप क्रिएट में जाके प्रॉपर साइड डिटेल फिल करके, दिल्ली ब्रांच है जैसे मेरी एक न्यू, मैंने दिल्ली ब्रांच कर लिया. यहाँ पे एड्रेस आप प्रॉपर डालिएगा दिल्ली एड्रेस का, देन उसके बाद स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर,
अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यस कीजिएगा, वरना नो। देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है कि वो जीएसटी नंबर पूछता है कि जो भी आपका ब्रांच का जीएसटी नंबर है वो आप एंटर करो, और स्टेट के अकॉर्डिंग। दिल्ली का जो हमारा मेन स्टेट ब्रांच का स्टेट है वो दिल्ली, देन यहाँ पे हम उसका दिल्ली का जीएसटी नंबर एंटर कर देंगे। सेम ऐसे ही मैंने ऑलरेडी 2-3 ब्रांचेस बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने कर्नाटका क्रिएट कर रखा है, कर्नाटका हमने क्रिएट कर रखा है, तो कर्नाटका का स्टेट कर्नाटका और जीएसटी नंबर भी हमारा कर्नाटका का है। महाराष्ट्र जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो मेरा मेन ब्रांच है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का भी हमने क्रिएट कर रखा है, महाराष्ट्र के हमने जीएसटी नंबर एंटर कर रखे। ये हो गया हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप जो था, वो है ब्रांच क्रिएट करना। उसके बाद अब हम आएंगे ब्रांच वाइज, जितनी भी ब्रांच है उनके अकॉर्डिंग वाउचर टाइप को क्रिएट करना, क्योंकि अगर हमें बाइफर्केशन करना है तो वाउचर टाइप भी अलग अलग होना चाहिए, और उसी वाउचर टाइप पे हमारी ये सारी ब्रांच टैग होगी, जिससे कि जब हम जिस वाउचर टाइप के अकॉर्डिंग बिलिंग करें, जिस वाउचर टाइप का यूज करके बिलिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। मैंने ऑलरेडी 2 वाउचर टाइप क्रिएट कर रखे हैं ब्रांच वाइज, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने सेल्स महाराष्ट्र मैंने क्रिएट कर रखा है, उसको मैंने सेल्स के अंदर ले रखा है। नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रांच, ये जो मेन है, ये सबसे मेन चीज यहाँ पे है मल्टी जीएसटी में, कि जो भी वाउचर टाइप आप क्रिएट कर रहे हो वो किस ब्रांच के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ये यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे तो आपका टैक्स का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। अभी जो मैंने वाउचर टाइप क्रिएट किया है ये सेल्स का किया है महाराष्ट्र के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र का सेलेक्ट किया है ब्रांच। सेम मैंने कर्नाटका का क्रिएट कर रखा है, कर्नाटका का भी। अब भी कर्नाटका का जो सेल्स मैंने क्रिएट किया है, वहां पे जो मैंने ब्रांच दे रखी है वो है कर्नाटका, क्योंकि ये जो वाउचर टाइप हम यूज करेंगे कर्नाटका के लिए। ऐसे ही मैंने एक और ब्रांच है मेरी, वो गुजरात, और यहाँ पे हम गुजरात का ब्रांच क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी हम एक एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो हमारा बेस है कंपनी का, लाइक जो हमारा जीएसटी नंबर, प्राइमरी जीएसटी नंबर है वो है मुंबई का, तो हम सबसे पहले मुंबई से बिलिंग करेंगे, और एक मुंबई के ही कस्टमर को। महाराष्ट्र का एक हमने डेटास बना रखा है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे महाराष्ट्र का उनका एड्रेस है, जीएसटी नंबर महाराष्ट्र, सेल्स महाराष्ट्र का लेजर ले लिया मैंने, और यहाँ पे स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी। क्योंकि अभी जो मेरी प्राइमरी कंपनी है वो महाराष्ट्र की है, तो हमने महाराष्ट्र के लिए उसको यूज किया है। महाराष्ट्र के लिए हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि पार्टी भी हमारी महाराष्ट्र की है। ये हमसे पूछा है कि ईवे बिल अगर जनरेट करना है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अभी हमारा जो था, एक हमने सीजीएसटी का बिल बना लिया, अब हम बनाएंगे आईजीएसटी का। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी पार्टी है वो है गुजरात की, गुजरात की पार्टी हमने सेलेक्ट कर लिया है। 24 सेल्स महाराष्ट्र, यहाँ पे क्वांटिटी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रेट, अगर आपका जो रेट डाल रहे हैं उसमें ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी या जीएसटी का जो रेट अमाउंट है वो इंक्लूसिव है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रेट कैलकुलेशन ले लेगा। देन यहाँ पे आईजीएसटी। इसके लिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हम अभी सेल कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं महाराष्ट्र से, और जो हमारी पार्टी है वो है गुजरात। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे महाराष्ट्र से जब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। अभी मैं सेम पार्टी को बिलिंग करूंगा गुजरात से। अब हम जाएंगे सेल करने गुजरात के वाउचर टाइप से। सेम मैंने पार्टी सेम ले ली जो अभी मैंने महाराष्ट्र से सेल करते टाइम लिया था, एबीसी डेटा गुजरात।
जो वाउचर टाइप है हमारा वो हमने ले लिया गुजरात का, एड्रेस पार्टी का गुजरात का है, और वाउचर टाइप जो हमारा है वो है गुजरात का। यहाँ पे हमने सेल्स गुजरात, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले लिया, रेट जो भी आपका रेट होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद जो हमारा टैक्स का लेजर है, अभी यहाँ पे अगर हम जो हमारा टैली का डिफॉल्ट फीचर है वो यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी जीएसटी नंबर है, जो हमारा स्टेट है वो है महाराष्ट्र का, बट अभी हमने मल्टी जीएसटी यूज करके हमने क्या किया, गुजरात का स्टेट बनाया, तो गुजरात के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो सेल्स जो गुजरात का वाउचर टाइप है उस पर हमने अभी स्टार्टिंग में ही जब हमने स्टार्ट किया था, जो हमने ब्रांच बनाई थी वो हमने गुजरात के लिए बनाई थी। तो अभी जो हमारा यहाँ पे इसके लिए जो कंसीडर कर रहा है, ये सेल्स गुजरात के वाउचर टाइप को एज अ कंपनी सेल्स गुजरात ही दिखा रहा है कि हाँ ये कंपनी गुजरात की है और गुजरात का जीएसटी नंबर है कंपनी का और गुजरात का जीएसटी नंबर है पार्टी का, इसलिए यहाँ पे उसने सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेशन दे दिया है। अगर हमने अभी यूज नहीं किया होता तो ये आईजीएसटी कैलकुलेट करना चाहिए था, जो कि हमारा डिफॉल्ट का फीचर है एसजीएसटी। अभी हमारा ये कैलकुलेट तो हो गया। अभी हमारा जो मेन है वो है रिपोर्टिंग, कि क्या हमारे रिपोर्ट में ये प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या वहां पे कोई एरर दे रहा है कि टैक्सेशन की टैक्स टाइप का गलत का, या आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सारी एरर आती है अगर आपने कोई रॉन्ग टैक्स का सेलेक्ट कर रखा है, या जहाँ पे आपको सेल्स टैक्सेबल करना था वहां पे आपने इंटर स्टेट टैक्सेबल कर रखा है, तो उसकी वजह से जो एरर आती है, क्या वो एरर आ रही है या नहीं, वो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो रिपोर्ट है जो हमने एंट्री की है वो प्रॉपर बनी है या नहीं। ये मैंने सेल्स गुजरात और सेल महाराष्ट्र से दो ब्रांच से मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना, हमारी जो रिपोर्ट है वो चेक करनी है कि क्या हमारी रिपोर्ट ब्रांच वाइज दिख रही है या नहीं दिख रही। वापस आ जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट। अभी जो टैली का डिफॉल्ट है, टैली जो आप यूज कर रहे होंगे उसमें आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी 3B। आपको यहाँ पे जाना, जब आप मल्टी जीएसटी यूज करेंगे तो आपको जाना है जीएसटी ब्रांच वाइज। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे वो पूछेगा कि आपको क्या दिखना है, R1 देखनी है, R2 देखना है या 3B। सबसे पहले हम R1 चेक कर लेते हैं। हमने एंट्री किसमें की थी, गुजरात महाराष्ट्र। हम पहले गुजरात देख लेते हैं। गुजरात में आप देखोगे तो आप ऊपर देखोगे जीएसटी नंबर गुजरात, मतलब जो कंपनी आपको दिखा रहा है गुजरात का है, स्टेट गुजरात का, उसका प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग वो गुजरात के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट लेके आया कि क्या क्या चीजें हैं। अभी जो हमने सेल किया था वो भी हम देख लेते हैं। ये हमने सेल किया था जो हमने गुजरात से किया था। तो जो हमारा जीएसटी R1 है वो हमारा मल्टी जीएसटी यूज करके ब्रांच वाइज जो है वो प्रॉपर गुजरात का आ चुका है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमारा गुजरात का था, कि हमारा जो बेस है महाराष्ट्र का क्या वो भी प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने ब्रांच चेंज किया, गुजरात का था तो वहां पे गुजरात का जीएसटी नंबर, अभी मैंने ब्रांच का सेलेक्ट किया है, ब्रांच महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग जीएसटी की जितनी भी डिटेल है, जीएसटी के जितने वाउचर है वो सारे यहाँ पे रिपोर्ट में लेके टैली आ गया है। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कितने वाउचर हमारे आईजीएसटी के हैं, कितने हमारे एसजीएसटी के हैं। तो इससे ये है कि हमारा जो मल्टी जीएसटी है उससे हमारा बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो हम एक ही टैली, एक ही कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस का डेटा मेंटेन कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जीएसटी की। ये हमारा हो गया जीएसटी R1। अब हम देख लेते हैं 3B का। जीएसटी R2 पहले देख लेते हैं। अभी जीएसटी R2 में देखेंगे गुजरात में ऑलरेडी मैंने कुछ डेटा एंटर कर रखा है, वो सारे डेटा इसमें आएंगे। ये हमारा जीएसटी R2 जो है वो भी हमारा ब्रांच के इसके लिए, हमारी जो मेन ब्रांच थी वो मुंबई है, बट हमने अभी ओपन किया गुजरात का, तो गुजरात के अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन लाके दे दिया है कि मैंने सिर्फ एक ही एंट्री कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने परचेज की एंट्री का पूरा डेटा यहाँ पे लाके दे दिया गुजरात के अकॉर्डिंग। सेकंड, मैं महाराष्ट्र का चेक कर लेता हूँ, जो हमारी बेस है। महाराष्ट्र का भी प्रॉपर आप देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो रेडी करके लेके आया है। मतलब ये है कि अगर आप जिस भी ब्रांच को सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग टैली उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट लेके आएगा। बाकी जो आपके डेटा है, जो दूसरे ब्रांच के डेटा हैं, वो आपको रिपोर्ट में नहीं दिखेंगे कि हाँ, वो कहीं भी आपको मिसमैच में नहीं दिखेंगे, ना ही वो वहां पे आपको कहीं भी दिखेंगे कि B2B में आ गया है
या IGST था तो उसकी वजह से कहीं भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो इससे ये है कि आपका जो प्रॉपर ब्रांच वाइज डेटा है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। थर्ड जो हमारी मेन रिपोर्ट है वो है 3B, वो भी हम देख लेते हैं। 3B पहले मैं गुजरात का देख लेता हूँ। अभी आप यहाँ देखोगे तो गुजरात की जो ब्रांच है उसका 3B का रिपोर्ट है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करके लेके आया है। इसमें कहीं भी आपको नहीं मिसमैच में दिखा रहा है, नहीं करेक्शन की नीड है, कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा। जैसा आप जैसे आप टैली को यूज करते हैं, प्राइमरी टैली को जो है हमारा सिंगल डिफॉल्ट टैली को, जैसे वो सिंगल के लिए काम करता है, वैसे ही ये प्रॉपर आपको मल्टी ब्रांचेस के लिए मल्टी GST नंबर के लिए काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको रिपोर्ट रेडी करके वो देगा। जिस भी ब्रांच का आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो रेडी करके प्रॉपर देगा। पहले हमने गुजरात का देखा था, ये हमारा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग जितनी भी डिटेल है 3B में वो ये रिपोर्ट में लेके आ रहा है टैली। तो बेसिकली इस मॉड्यूल का हमारा यूज ये है कि हम जो भी मतलब जैसे हमारी ब्रांचेस ज्यादा हैं उसमें क्या है कि हमें कभी कभी 4 या 5 ब्रांचेस होती है तो हमें अलग अलग कंपनी बना के रखना होता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमारा ईयर एंड में जब हमारा ऑडिट होता है तो उसमें जो बैलेंस शीट होती है उसको कंसोलिडेट नहीं मिलता, वो अलग अलग रहता है, फिर हमें उसको इकट्ठा करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है, फिर हमें वो बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आप ब्रांच वाइज आप GST की रिपोर्ट भी भर सकते हैं आप, और आपका जो बैलेंस शीट है वो भी आपको एक साथ ही वहां पे दिख जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये कि एक ही कंपनी में आपका सारी ब्रांच का डेटा मिल जाएगा। सो सर आज मल्टी GST में सर इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेरी है तो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। साहिल, लेट्स सी द क्वेरी सेशन, ठीक है ना? हम थोड़े लाइक डिस्कस करके फिर उसके बाद में क्वेरी सेशन को जाते हैं क्योंकि ओवर रिकैप भी हमारा अभी बाकी है, ठीक है ना? ओके मैम, ओके मैम, ओके गाइस, सो थैंक यू एवरीवन, या थैंक यू मैम। यस, आई विल गेट बैक टू यू साहिल। मैं बस 2 मिनट में फिर आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। Thank you, Sahil. Thank you so much. Thank you, ma'am. So basically, as of now, we saw the multi-state GST with Tally Prime में कैसे कैसे हम state wise देख सकते हैं, कैसे हम उसमें like details को entry करना है, और बहुत सारी चीजें हमने यहाँ देखा। So now we saw theoretical presentation और live demo दोनों हमने देखा। So अभी फिलहाल के लिए हमें over recap देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इन चीजों पे नहीं था। एंड मोर आई कैन से द कॉन्सेप्ट विल बी आपको कैसे फ्लेक्सिबल होगा, कैसे सेव होगा, एंड एट द सेम टाइम हाउ कैन यू सेव योर टाइम। एंड देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो हम थियोरेटिकली और डेमो देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। So I think the practical experience or at the same time over review or over recap will really help us to understand these concepts in a multiple like better way, I can say. So now let us see the like resource person's view, that is Mr. Bhagwati. So Mr. Bhagwati, request you to proceed ahead. Yeah. Mr. Bhagwati, are you here? Yes, Deepa, I am available over here. हमने देख लिया अभी presentation और live demo भी. So take a overview onto the concept, I think, which would really attract the customers a lot. All right? Yeah, I agree. Yes. Yeah. So over to you. Thank you, Deepa, and good evening, everyone. Myself is Bhagwati Dhandaria from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. जैसा कि रेगुलर हम लोग नए नए मॉड्यूल्स एंड नई रिक्वायरमेंट्स, मार्केट डिमांड, आपकी डिमांड के बेस पे जिस मॉड्यूल्स की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, जिस टॉपिक की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है, उसको लेकर के हम आते हैं और आते रहेंगे। नाउ 2022 दिस इज अ फर्स्ट सेमिनार, फर्स्ट वेबिनार फॉर द of this year. So this is a really big topics in terms of the market demand and market requirements in last few months. So काफी हमने इसके ऊपर काम किया था, काफी customers already they are using this module, they are very happy. तो multi GST की requirement क्यों है? GST is already available in the Tally Prime. I think बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, तो I want to clear this point. अगर
किसी भी कंपनी की मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेज है तो और वो एक ही डेटाबेस में टैली में एक ही कंपनी को क्रिएट करके मल्टीपल ब्रांच को यूज करना चाहता है, उस कंडीशन में उसको मल्टी जीएसटी लगती है। अदरवाइज करंट सिनारियो पीपल आर यूजिंग, महाराष्ट्र में एक ऑफिस है, गुजरात में एक ऑफिस है, कर्नाटक एक ऑफिस है, तमिलनाडु एक ऑफिस है, तो चारों ऑफिस के लिए 4 अलग अलग अकाउंट वहां पर टैली में क्रिएट किया है कंपनी, और चारों के मेंटेन अलग अलग करना है, बट डेटा इज नॉट सिंक्रोनाइज। वहां पर पूरा डेटा एक पार्टी के लेजर में कितना आउटस्टैंडिंग है ये देखना है, तो उसके लिए उसको काफी वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन मल्टी जीएसटी सिनारियो में ये जो मॉड्यूल हमने डेवलप किया है, ये उन सभी कंपनियों के लिए लाइफ को काफी इजी कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू यूज है, नेक्स्ट इज टाइम सेविंग है, और आप अपने कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं हर एक रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स में। एंड इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट, यस, उनके लिए तो मैं बोल सकता हूं कि ऑन सिंगल क्लिक स्टॉक, क्योंकि सिंगल क्लिक की स्टॉक पे वो सभी रिपोर्ट्स उनको जस्ट लाइक ए सिंगल स्टेट की रिपोर्ट्स हो गए या मल्टीपल स्टेट की रिपोर्ट्स हो, वो सब मिल जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ द मल्टी जीएसटी आज की डेट में अलग अलग कंपनियों में एंट्री करनी होती थी और फिर डेटा को मर्जिंग करना होता था, फिर डेटा मर्ज करने के बाद में आपको रिपोर्ट देखनी होती थी। लेकिन इस मॉड्यूल को यूज करके आप सिंपली आपके सेम टैली में सेम तरीके से सिर्फ आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है और सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है, उसके बेस पे जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। एग्जाम्पल जैसा साहिल ने बताया, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की पार्टी को बिल करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लेकिन दिल्ली से महाराष्ट्र की पार्टी को सेम कंपनी में ही बिलिंग करेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। तो ये जितने सिनेरियो हैं, हर एक सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इस मॉड्यूल को बनाया गया, जिसका लाइव एग्जांपल आप लोगों ने देखा। इसके बाद में आ जाते हैं रिपोर्टिंग पार्ट पे। जो आप रिपोर्ट में देख पा रहे थे कि हम जीएसटी के जो कंप्लायंस है, लाइक जीएसटीआर 1, 2B या 3B, जो भी 2A रिकॉन्सिलेशंस, एवरीथिंग इज सेम, कि आप अलग अलग स्टेट के, लाइक आपने ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी अलग अलग कंपनी आपने बना के रखी है टैली में, अलग अलग स्टेट की, जैसे आप बनाते थे और उसमें रिपोर्ट देखते थे, सेम वे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो इससे आपका पूरा टाइम सेविंग हो रहा है और आप एक जगह मर्ज डेटा देख पा रहे हैं। यू वांट टू नो, आपका डायरेक्टर, आपका मैनेजमेंट देखना चाहता है मेरा इस महीने का टोटल कंपनी का पूरे इंडिया में कितना 3B फाइल होना है, वो एक साथ देख सकता है। और स्टेट वाइज देखना है तो स्टेट वाइज देख सकता है। 2A का रिकॉन्सिलेशन करना है तो कितना 2A में मेरा पैसा बाकी है, पूरे स्टेट वाइज एक साथ देख सकता है, इंडिविजुअल देख सकता है। सेम वे GSTR1 आप जब फाइलिंग कर रहे हो तो पूरे GSTR1 टोटल स्टेट की कितनी है, टोटल इंडिया की कितनी है, स्टेट वाइज कितनी है, वो सब देख पाएंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ द कंडीशंस आप सभी रिपोर्ट को क्लब करके देख सकते हैं, इंडिविजुअल स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। बाकी जितने फीचर्स है, लाइक मैं आउटस्टैंडिंग लेजर की बात करूंगा। मान लीजिए एक पार्टी है X और X पार्टी को ABCD लिमिटेड ने बिलिंग किया है, और ABCD लिमिटेड आपकी कंपनी है, उन्होंने दिल्ली से भी बिलिंग किया, बॉम्बे से भी बिलिंग किया। आपको X पार्टी में वो पूरी की पूरी बिलिंग एक ही साथ दिखेगी, आउटस्टैंडिंग एक ही जगह मिल जाएगा। अदरवाइज पहले के सिनेरियो में क्या होता था, ABC लिमिटेड को गुजरात की कंपनी में X को अलग बिलिंग करना होता था, महाराष्ट्र में अलग बिलिंग करना होता था, उसका क्लब रिपोर्ट उसको नहीं मिलता था। अब पार्टी को अगर लेजर भेजना है तो यू हैव टू क्लब बोथ लेजर, देन यू कैन सेंड द स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट। लेकिन इसमें काफी कम आसान हो गया। कस्टमर ने आपको फोन किया, आपकी पार्टी ने फोन किया कि बॉस मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, आपने टोटल आउटस्टैंडिंग बता दिया। उसने पूछा कौन से ब्रांच का कितना आउटस्टैंडिंग है, वहां से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन दिस मॉड्यूल्स एंड यू कैन एंजॉय विद दिस। तो ये सभी चीजों का एडवांटेज देखते हुए, इन सब चीजों की डिमांड देखते हुए हमने ये जीएसटी मॉड्यूल बनाया। अब इसके अलावा कुछ जगह से स्पेशल क्वेरीज ऐसी भी आती है कि क्या सर ये ई-वे बिल कर पाएंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि मल्टी स्टेट में हमें ई-वे बिल भी लगता है। यस, डेफिनेटली यू कैन डू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है, क्या ई इनवाइजिंग हो पाएगा? क्या मेरा अगर मान लीजिए मैं गुजरात से बिलिंग करूंगा
या मैं महाराष्ट्र से बिलिंग करूंगा, तो क्या मेरा अलग अलग पोर्टल उसके साथ सिंक कर पाऊंगा? क्या मैं ई इनवॉइसिंग यहाँ से इंडिविजुअल स्टेट वाइज कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स कर पाएंगे, आप एकदम कर पाएंगे। ये सभी चीजों को हमने कंसिडर किया। आप ऐसा समझ सकते हैं कि टैली वेनिला टैली जो स्टैंडर्ड टैली है, उसने जितनी कैपेसिटी डाली है अपने इंडिविजुअल जीएसटी मॉड्यूल्स में, हमने वो पूरी की पूरी कैपेसिटी पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड जीएसटी मॉड्यूल्स में, हमने मल्टी जीएसटी मॉड्यूल्स में डाल दी है, जहां पर आपको कोई भी ऐसा फीचर, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एक ऐसा फीचर है जो आप मिस कर पा रहे हो, आपको कहीं भी मिस नहीं होगा। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज आपका टाइम, मनी, एरर, ये सभी चीजें सेविंग होगी, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा और यू विल गेट दिस एडवांटेज और यू विल ग्रो योर बिजनेस इन डिफरेंट वे एंड यू एंजॉय योर लाइफ विद सेव द टाइम। So that's it from my side, Deepa. Now you can carry on. Thank you, Mr. Bhagwati, for the wonderful over recap. Now let's move on to the question and answer session. So, Mr. Bhagwati, keep checking your inbox. आप लोगों को अगर कोई questions है, the spectators request you to please, if you have any questions, जरूर आप question को comment box में update कर सकते हो. And beyond that, if you have any questions, पहले comment box में update कीजिए, then you can raise your hand. We will check on to the question and we will give you the privacy to just have a discussion here in this particular forum. Yes. So, like as usual, I always talk about the like offers of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So basically, every week we like prefer to give a right offer to the customers, whether it's onto product, onto services, etc. So, as a New Year sale, we do have certain offer. बस उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी ऑफर अगर आपको मिस नहीं करना है, because you are like in need of anything, whether it might be service or software, request you to please do subscribe our YouTube channel and as well follow our social media activities as well, because there we always update what are the offer which is actually present with us. So now it is the time to announce the offer as we are in the end of the like today's webinar. So basically offer मैं आपको यही बताऊंगी, we have a wonderful offer that is for Tally on Cloud. Basically, the offer is up to 70%. Wow, that's really a super cool offer, wherein you will be paying for only the 25 or 30%. Sorry, 30%. You will be paying only for 30%, and it depends on to the scenario, situations, and what are the working style structure of you as of now. So it starts from 30% and till 70% you will be getting an offer. So we do have a separate account manager. If you are interested to know the offer, request you to please check on to the numbers which is provided in the comment box, and ये offer को जरूर utilize कर लीजिएगा, because you can sit anywhere and everywhere and just work without any kind of hassles. This has become one of the most important thing for an organization as of now. And yes, I guess there are multiple questions here. Can you send video recording of demo shown to our email ID? Thank you so much for your like question here, Mr. Mustafa. But I'm so sorry to say this. Specifically, we will not be sending the videos to your particular email ID. But yes, you can check out our the like chat box. There you can see we have updated the YouTube channel link. So request you to please click on to the YouTube channel link and do subscribe our channel. You will be getting this video exactly by 2 days. We will be updating this video in the social media such that you can check out the video by like visiting our social media. Personally, we will not be able to send you this video, but yes, if you really have any queries onto this, personally we can give you. Request you to please do connect us, Mr. Mustafa, if you have any more doubts onto this. And if you wanted to visit this particular video, once again watch this video, request you to please visit our YouTube channel. You will be able to watch the video. Yes, I think I'm done with this question. If there is any other question, request you to please update in the comment box such that we can answer the questions here and we can go on to the discussion as well. Well, I was in the discussion of offer.
So up to 70% offer cloud is one of the most emerging factor for every organization. So make sure that if you're interested to work hassle free, and at the same time if you're interested to work out of office, I think this would be the right option for you. Request you to do connect us to know more onto this particular Tally on Cloud. As I said, we do have a separate account manager who will be assisting you completely how to set up and how to work flexibly without any kind of hassle. Yes, so moving ahead to the topic, Mr. Bhagwati, is there any other questions on to today's topic? No, Deepa, here are not any available questions because this demonstration is very clear and transparent. So I think That's really wonderful. Yes, this is a the demo has been given, and at the same time, the theoretical presentation has been given, and over recap as well. And we are going to put this in the YouTube as well. So mostly. I think, yeah, I think this is one of the most important thing, and I can say source wherein they can just get back to the knowledge once again if they visit to the YouTube channel. And at the same time, very proudly, I would like to say that our YouTube channel acts as a knowledge base as well. Because if you really wanted to learn something, it has happened, and we have multiple feedbacks from the clients as well. If they are like taking in some of the new joinees, they just tell us to visit our YouTube channel, tell the new joinees to visit our YouTube channel, and of course they start learning things. So I think you can also utilize our YouTube channel in that way. It will really be more helpful. People are using our YouTube channel just like a knowledge base, and Right. the Tally and other things, other softwares like, and many of the people are also using for the how to statics, strategy and planning, and use that use in in own business and get the advantage of the grow the business with all the software and other things. So they are getting Right, very true. So Yeah. I think that would really be a productive part for you people. Specifically, I would like to say to the spectators. So I think there is no more here to discuss on to the like questions, Mr. Bhagwati. So let's freeze up the topic. Do you have anything to add on here? No, Deepa, I think we covered all the points. Okay. That's great. That's great. So, firstly, thank you so much to the like presenter, Ms. Annam and Mr. Sahil. You did a wonderful job, even though we did this topic multiple times. But as per the customer's demand, we have to do it. And yes, always we try to present something new. And yes, today that has happened. We have justified the session, I can say. So, thank you so much, Mr. Sahil and Ms. Annam. Thank you, ma'am. And moving ahead to Mr. Bhagwati, of course, always the add-on and over recap really matters every time, every way, every second, I can say. So that is something which gives an additional knowledge, which actually motivates us to go for the software or the services or etc. So you really justified your job, Mr. Bhagwati, and it was really super cool to understand multiple things here. Thank you, Deepa. Yes. And so special thanks to all the spectators who took your time and given us the space and to understand the particular topic and given us the space to see our webinar, sessions as well. So thank you everyone for your wonderful time and space towards this session. So that's it for today, and let's see with a new topic next week. And this was the first webinar in this 2022, and we are completely satisfied and happy. I hope the spectators are also completely satisfied and happy. And let's see with a wonderful topic in the next week. And if you have any topic suggestion, request you to please update us the topic suggestion such that we can work onto it and we can update you about that session in the next webinar. Thank you, everyone. Take care. Stay safe and stay confident, and stay tuned for the next webinar. Thank you. Take care. Bye-bye.